أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور البتہ ہم نے آسان کر دیا قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے، بس تم میں سے کون ہے جو قرآن کریم کو سیکھے؟ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس ترتیل القرآن کے نئے سبق کے ساتھ یہ نیا سبق درس ترتیل القرآن کے 40 روزہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، اور اس کا آج ہم سبق نمبر 12 یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کو جزم اور شد کے متعلق عرض کیا تھا، پڑھایا تھا جزم اور شد۔ سبق نمبر 12 میں گراف ہے۔ گراف ایک ایسا خاکہ ہے جس کے ذریعہ کسی قاعدہ کو شر و بست کے ساتھ تحریر یا نقشے کی مدد سے واضح کیا جائے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں گراف کا، یہ گراف ہم لوگ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں 1 2 3 4 5 6 خانے ہیں، 6 خانے۔ ان 6 خانوں میں 4 تو وہی ہیں جو ہم نے آوازیں آپ کو بتایا تھا کہ آوازیں آدھی آواز، پوری آواز، دوگنی آواز، 4 اور آدھی سے بھی چھوٹی ہے کوارٹر، پاؤ، کوارٹر، وہ جزم کی آواز ہوتی ہے، اور کوارٹر سے بھی آدھی ہے آدھا پاؤ، وہ شد کی آواز ہوتی ہے۔ مثلا ام، یہ شد کی آواز ہے، ام، ہم، ٹھیک ہے، نس، ٹھیک ہے نا، اور جزم ہے ام، اس سے بڑی ہو گئی نا، ٹھیک ہے نا۔ مر شد ہے، میرو، یہ اس سے ڈبل ہو گئی، اور زبر اس سے ڈبل ہے، زبر زیر پیش، اور جو پوری آواز ہے وہ اس سے ڈبل ہے، 2 گنی آواز اس سے ڈبل ہے، 4 گنی آواز اس سے ڈبل ہے۔ آپ جب لیٹ ہیں پھر سنیے ذرا، ہم خاکے پڑھا رہے ہیں آج۔ یہ دیکھیے آپ کا پیج نمبر 78 نمبر، اس کے اندر 6 لائنیں بنی ہوئی ہیں، 6 دیکھ رہے ہیں۔ 4 تو وہی ہیں، 4 گنی آواز، 2 گنی آواز، پوری آواز اور آدھی آواز۔ آدھی سے پھر آدھی کوارٹر ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، جیسے آدھا کلو، 1 کلو پوری آواز ہو گئی، آدھا کلو آدھی ہو گئی، اور آدھا کلو سے بھی آدھا کوارٹر ہو گیا، وہ ہے جزم کی آواز۔ جیسے ام، بولو ام، لم، تو شد اس سے بھی آدھی ہے، یعنی 1 کلو کے 8 حصے کیے جائیں تو 2 حصے ہوں گے، 1 حصہ ہوگا شد کا، 2 حصے ہوں گے جزم کے، 4 حصے ہوں گے آدھی آواز کے، اور 8 حصے ہوں گے پوری آواز کے، اور 16 حصے ہوں گے 2 گنی آواز کے، اور 32 حصے ہوں گے 4 گنی آواز کے۔ 1 اور 32 کا تناسب ہے، 1 اور، لہٰذا ہم نے یہ 32 خانے بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں سے یہ ہے، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ہاں 16 خانے ہیں، یہ 16 خانے ہیں۔ پہلی آواز آدھے خانے تک، پہلی آواز، اچھا جو -1/1 ہے،
उससे डबल जो है वो 1 खाने तक जज़म की आवाज़, 2 खानों तक ज़बर ज़ेर पेश की आवाज़, 4 खानों तक अलिफ वाव या मद्दा की आवाज़, 8 खानों तक 2 गुना आवाज़ और 16 खानों तक 4 गुना। समझ आ गई आपको? माशाअल्लाह। अब पीछे आइए, पिछले पेज पर। ग्राफ एक ऐसा खाका है, खाका कहते हैं जब टेबल नहीं हमने बनाया, नक्शा, तस्वीर, नक्शा, कुछ भी आप कह लें, जिसके ज़रिए किसी कायदा को खोल कर, शरो बस किसे कहते हैं? खोल कर तहरीर या नक्शे के साथ उसको वाज़ेह समझाया जाता है, लिखने के साथ या नक्शे के साथ। ये इसको क्या कहते हैं? खाका, ग्राफ। क्या कहते हैं? ग्राफ। इंग्लिश लफ्ज़ है ग्राफ, हमारे यहाँ इसको हम कहेंगे लाइनों के साथ, ठीक है ना। लाइनें डालकर समझाया जाता है ना, भाई ये पूरी है, ये उससे आधी है, ये उससे आधी है, हम इसको लाइनें कहते हैं, इंग्लिश में इसको ग्राफ, ठीक है। बनाने का मकसद, ऊपर देखें, ग्राफ बनाने का मकसद ये है कि आवाज़ों के उतार चढ़ाव या कमी बेशी को खाका की मदद से, यानी लाइनों की मदद से, खतूत की मदद से, खत किसे कहते हैं? लाइन को कहते हैं, ठीक है ना। कारी के, आप माशाल्लाह कारी हैं, आपके ज़हनशीन करवाया जाए। बनाने का तरीका आपके सामने ये पेज बना हुआ है, खोल कर देखें। आपको ये बात सफ़े के ऊपर तकरीबन 3 इंच जगह छोड़ दें। मसलन आप लें ना वो बड़ा चौट लें, कोई वर्का बड़ा लें, उसके ऊपर 3 इंच जगह छोड़ दें। जगह छोड़ने के बाद उसके ऊपर 3 इंच जगह छोड़कर ना नीचे 16 लाइनें बनाएं। नहीं, 16 खाने इस तरह, ऐसे राइट से, लेफ्ट से राइट की तरफ। कितने बनाएं? 16। नहीं ठहरिए, नहीं 6 खाने, हाँ, ऊपर से नीचे की तरफ 16 खाने, ऊपर से नीचे की तरफ 16 खाने, ऊपर से नीचे की तरफ एक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 16 बनेंगे। वो मैं ठीक कर रहा था, राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ। और जो इस तरह है लंबी, वो आवाज़ें कितनी हैं? 6। 4 तो वही है ना, और 2 क्वार्टर और आधा क्वार्टर, ठीक है ना। ये ऊपर 3 इंच जगह आपने छोड़नी है। उसके नीचे कितनी लाइनें डालेंगे तो 16 खाने बनेंगे? बोलो, गिन लो। हाँ, जब आप एक बाहर का हाशिया लगा लेंगे ना, तो फिर 16 लाइनें बनेंगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे ये आपको बनाने का तरीका आ गया है, ये आप सबने बनाना है। अच्छा, आपने बनाना है। आपको ये बात मालूम है कि कुरानी आवाज़ों में सबसे छोटी आवाज़ कौन सी है? शद की। सबसे छोटी आवाज़ शद की। जैसे मुस्तमिर, मिर यानी मिर तो हो गई ना जज़म। ये जज़म, इसमें सख्ती भी है, और जो सख्ती है ना वो जज़म की आवाज़ को अदा कर देती है। आधा आवाज़ सुनाई देती है, आधी आवाज़ जो है ना वो शद के नीचे दब जाती है। अदा करके देखें, मुस्तमिर, ठीक है ना। अब जज़म देखें, वन हार, समझा गई ना। सबसे छोटी आवाज़ कौन सी हुई? शद की। अब मैं दोबारा पीछे से शुरू करूं, क्या करूं? अच्छा जी, सबसे छोटी आवाज़ कौन सी है? नारो, कुर्सी है उधर? शादी हो तो कुर्सी कर लो ना, को बंदा और भी आ जाता ना। चलो इधर ले आओ, इस तरफ आ जाए।
ہاں جی آپ کرسیاں دو لا کر رکھ دیجیے احمد. ہاں چلو ہاں جی. سب سے چھوٹی آواز ہے شد کی. مستمر اس سے ڈبل ہے جزم کی. ون ہارو. اب آپ موازنہ کریں دینا کتاب. مستمر مر بولیے مر. ادائیگی میں آپ کی ادائیگی صحیح کرا رہا ہوں. مر لمبی نہیں کرنے. مستمر تقشعر حب ات یہ شد ہے. لیکن اگر ہو جزم جو ہے وہ اس سے ڈبل ہے. جزم اس سے آپ دیکھیے کوثر ونحر اس سے ڈبل ہو گئی نا. زبر کی یا زیر یا حرکت جو ہے اس کی آواز اس سے بھی ڈبل ہو جاتی ہے. دروازہ کھول تھوڑا جا ٹھیک ہے. اور پوری آواز الف مدہ واو مدہ یا مدہ کی آواز اس سے بھی ڈبل ہو جاتی ہے. جیسے اوتینا دو گنا آواز اس سے بھی ڈبل ہو جاتی ہے. جیسے انا اعطیناک بولو. نا کا نون اس کے اوپر دو گنا مد پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو چار گنا آواز اس سے بھی لمبی ڈبل ہو جاتی ہے. جیسے نساء اب یہ آپ گراف کے اوپر دیکھیں کہ ہم نے 16 خانے بنائے ہوئے ہیں. یہ جو سب سے آخر میں ہے یہ بڑی مد کی آواز ہے. یہ 16 خانے تک جاتی ہے. کتنے خانے تک؟ 16 خانے تک. اس سے پہلے یہ جو ہے یہ دو گنا آواز ہے چھوٹی مد کی. یہ 8 خانوں تک جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا. اس سے آگے یہ آواز ہے حروف مدہ کی. یہ 4 خانوں تک جاتی ہے. اس سے آگے دیکھیں یہ زبر زیر پیش کی یہ 2 خانوں تک آتی ہے. اس سے آگے دیکھیں آپ جزم کی یہ 1 خانے تک آتی ہے. اور اس سے سب سے پہلے ہے شد کی وہ آدھے خانے تک جاتی ہے. یعنی ہم نے جو بڑی مد ہے اس کے 32 ٹکڑے کریں تو شد کی آواز بنے گی. 32واں حصہ شد کی کیونکہ شد آدھا خانہ ہے نا اور بڑی مد 16 خانہ ہے. تو بڑی مد کے 32 ٹکڑے کرے تو 32واں ٹکڑا جو ہے وہ جزم وہ شد کی آواز. 16 ٹکڑے کریں تو 16واں ٹکڑا جو ہے وہ جزم کی آواز ہے. 8 ٹکڑے کریں کتنے 4 نہیں 16 سے 8 ٹکڑے کریں تو وہ آواز بنے گی الف واو یا کی. 4 ٹکڑے کریں تو وہ آواز بنے گی زبر زیر پیش کی. 2 ٹکڑے کریں تو وہ آواز بنے گی جزم کی. اگر 1 ٹکڑا کریں تو آواز بنے گی شد. 1 اور 32 کا تناسب ہو گیا. 1 اور جو سب سے چھوٹی آواز ہے وہ 1 گنا اور جو سب سے بڑی آواز ہے وہ 32 گنا. 32 گنا. جب پہلی کو ہم نے 1 گنا کہا ہے آدھا نہ کہا 1 گنا کہا ہے نا تو 32 ہو گیا نا. یہ تو ہم نے جگہ کی وجہ سے ہم نے خانے 16 بنا لیے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم اس کو پہلے کو 1 خانہ بنائیں گے تو جو دوسری آواز ہے جزم کی وہ کتنے خانے بنے گی 2 اور زبر زیر پیش والی 4 الف واو یا والی 8
छोटी मद 16 और बड़ी मद 32। समझा गई बात क्या आपको? ये है ग्राफ। अच्छा, आपको अब करना कैसे, बनाने का तरीका आपको बता दिया है कि सफ़े के ऊपर तकरीबन 3 इंच जगह छोड़कर ताकि आवाज़ें लिखी जाएं, बाकी सफ़े पर 16 खाने बनाने का तरीका। अब आपको ये बात मालूम है कि कुरानी आवाज़ों में सबसे छोटी आवाज़ ऊपर से बोलो क्या है? जैसे अब, इब, उब। इसको लिखें और ग्राफ में इसको लंबाई को जाहिर करने के लिए निसफ खाने तक लकीर लगाएं। इसके बाद जज्म, तनवीन और साकिन नून, इनकी आवाज़ है अन, अलिफ ज़बर नून अन या अलिफ दो ज़बर अन, अलिफ ज़ेर नून इन या अलिफ दो ज़ेर इन, अलिफ पेश नून उन या अलिफ दो पेश उन को लिखें और उनकी लंबाई के इजहार के लिए पूरे खाने में लकीर खींचें। इसके बाद आधी आवाज़ें आ, ई, उ लिखें और इनकी आवाज़ों की लंबाई को जाहिर करने के लिए 2 खानों तक लकीर लगाएं। इसके बाद पूरी आवाज़ें लिखें, अलिफ वाव या मद्दा, बा बी बू बोलो, इनकी लंबाई को जाहिर करने के लिए 4 खानों तक लकीर लगाएं। फिर 2 गुनी आवाज़ बा बोले, बू बी 16 खानों तक लकीर खींचें। ग्राफ को देखने से ये बात वाज़ेह होती है कि कुरान पाक में सबसे छोटी आवाज़ शद की आवाज़ है और सबसे बड़ी आवाज़ चौगुनी आवाज़, लिहाजा आवाज़ों में 1 और 32 का तनासब है। ग्राफ बनाने का फ़ायदा ये है कि जब आप किसी भी आयत को बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक खोल कर आवाज़ें बनाएंगे, अगर आपको इन आवाज़ों की पहचान होगी तो ग्राफ लगा सकेंगे, वरना इनको पहचानने की कोशिश करेंगे। जब आप पहचानने में कामयाब हो जाएंगे तो ये आवाज़ें यकीनन वही होगी जो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब आएँ कुरान पाक की आयात को खोलने का तरीका, मुक़द्दसा को खोलने और आवाज़ों बनाने के तरीके। सफ़र नंबर 1 में कुरान पाक की जिस तरह इबादत है ना उसी तरह लिखें। आप ये पेज नंबर लिखी हुई, मैं बोल, हाँ पेज नंबर 99 पे आए। ये देखिए, खोल लेना। सबसे ऊपर वाली लाइन में कलमा शरीफ लिखा है जिस तरह हमने लिखते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है। दूसरी लाइन में हमने सारे हरफ जो हैं उनको खोल कर लिख दिया है। ये दूसरी लाइन में देखें, ये सारे हरफों को खोल कर लिख दिया है। अच्छा, ला के ऊपर मद है तो हमने वो ला डाल दिया है, ला। ठीक है, साथ अलिफ भी डाला है। आगे ई हमजा को अलग डाला है नाल ज़ेर के साथ। आगे फिर लाम खड़ी ज़बर के साथ, हा फिर ज़बर के साथ, इल शद के साथ, लम लाम के ऊपर ज़बर है, फिर अगली लाम के ऊपर शद है। आप देख रहे हैं सारे हरूफ लिखे हैं लेकिन खोल कर लिख दिए। ये दूसरी लाइन हो गई। तीसरी लाइन में हमने क्या किया है, अच्छा, कि ला, इस लाइन से हमने खाली हरफ निकाल दिए हैं, अलिफ के अलावा खाली हरफ निकाल दिए हैं। ठीक है ना। और हरफे शद वाला हरफ जो है उसको हमने 2 दफ़ा करके लिखा है। ठीक है, इल। अच्छा, तो ये ऊपर वाले भी 24 हरूफ हैं, नीचे पर जब खाली निकाल दिए तो शद वाले 2 दफ़ा करके लिखे तो वो तकरीबन पूरे हो जाते हैं। तो ये आगे सबक में जाकर इसका पूरा तरीका आएगा। अभी यहाँ पर आपने सिर्फ ये देखना है, सतर नंबर 2 में 79 पेज पे आए, सफ़र नंबर 2 में बितरतीब हर हरफ को उसकी हरकत के साथ
अलहदा अलहदा करके लिखें। ऊपर देखें बेटा, आप सब ऊपर देखो, कान मेरी तरफ रहें और नज़र किताब के ऊपर रहे। जज़म वाले हरफ को क्या कहते हैं? हरफे मजजूम। बोलिए, हरफे और हरफे मुशद्दद भी लिखें, क्योंकि ये हरूफ अपने से पहले वाली हरकत वाले हरफ के साथ मिलकर पढ़े जाते हैं। मद जब किसी आवाज़ की पक्की तख्ती पर हो तो उस हरफ को दो हिस्सों में अलहदा अलहदा करके ना लिखें, इसलिए कि मद पूरी आवाज़ पर आता है। मसलन ला, लाम अलहदा और अलिफ अलहदा नहीं लिखना, इकट्ठा लिखना है। अगर आपने पक्की तख्ती के हरूफ को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया तो क़वायद के मुताबिक मद फिर किसी हरफ पर नहीं लिखा जाएगा। अगर लाम अलहदा कर दी और अलिफ अलहदा कर दिया तो फिर वो अलहदा हो जाएगा। अच्छा, इस तरह सतर में कोई भी खाली हरफ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये सतर नंबर 2 जो है उसमें, क्योंकि खाली हरफ पढ़े नहीं जाते सिवाय अलिफ के, जिसका ताल्लुक अलिफ मारूफ की पक्की तख्ती से है। अगर आप अलिफ मारूफ की पक्की तख्ती के अलिफ को लिखना भूल गए तो तिलावत और मानी तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि अलिफ के बगैर सिर्फ ज़बर की आवाज़ अलिफ मारूफ की आधी आवाज़ होगी, पूरी नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक आप याद कर लें, और कल आपने ना ये ग्राफ जो है ये बना के लाना है। ठीक है, अब आइए तजवीदी गाइड के ऊपर। हमने सिफात की तारीफ पढ़ी, सिफात याद की थी आपने? सिफात सिफ्त की क्या माना है इसका? किसी हरफ की हालत और समझे ना। सिफात की 2 किस्में हैं, सिफात लाजिमा, सिफात लाजिमा, सिफात आर्ज़ा। सिफात लाजमा किसे कहते हैं? जो हरूफ में हर हालत में, देखिए जैसे इंसान के अंदर सांस है, ये उसकी लाजमी चीज़ है, अगर सांस नहीं होगा तो जिंदा नहीं रहेगा। तो सिफात आर्ज़ा जो कभी होती हैं और कभी, आदमी कभी सोता है, कभी रोता है, कभी चलता है, कभी बैठता है। ठीक है ना, ये उसकी सिफात आर्ज़ा है। इसीलिए अगर किसी को बुखार हो जाए या कोई मर्ज हो जाए तो कहते हैं आर्ज़ा लाहिक हो गया है, कि वक्ती तौर पर मैं सेहत मेरी जो है वो चेंज हो गई है। आर्जी है ना, ये बीमारी को आर्ज़ा कहते हैं। लेकिन हम उस आर्ज़े की तरफ नहीं जाएंगे। हम बाज़ आर्ज़े ऐसे हैं कि उनकी ज़रूरत होती है, उनकी ज़रूरत होती है। मसलन जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा लिबास पूरा होना चाहिए। आम रूटीन में हम लिबास मुख्तसर भी पहन सकते हैं, ठीक है ना। तो हर चीज़ जब उसकी ज़रूरत हो उस वक़्त उसका करना ज़रूरी होता है, और जब ना ज़रूरी हो, जब उसको नहीं करना चाहिए तो फिर उसको, यदि सिफात आर्ज़ा वो हैं हरूफ में कभी मद होता है और कभी, जब मद हो तो फिर मद करनी है, और जब मद ना हो तो फिर मद नहीं करनी। कभी हरफ पुर होता है और कभी बारीक होता है, कभी हरफ सख्त होता है और कभी हरफ नरम होता है, कभी आवाज़ बंद होती है और कभी आवाज़ जारी रहती है, कभी सांस जारी होता है और कभी सांस बंद होता है। समझा रही बात की? तो इनको क्या कहते हैं? सिफात लाजिम आरिज़ा। क्या कहते हैं? सिफात आरिज़ा। अच्छा, सिफात आर्ज़ा वो हैं जो कभी पाई जाती हैं और कभी नहीं पाई जाती। सिफात लाजमा का मकसद तो ये है कि अगर वो अदा ना करें तो हरफ या तो दूसरे हरफ से बदल जाएगा और या हरफ अदा ही नहीं होगा। और सिफात आर्ज़ा कि जो हरूफ के हुस्न व ज़ीनत के साथ, हरूफ के तल्लक है, वो अगर अदा ना हो, वो अगर अदा ना हो तो हर्फ की ब्यूटी नहीं रहती, खूबसूरती नहीं रहती। ठीक है ना। तो आइए हम पहले सिफात लाजमा को देखते हैं। देखिए सिफात लाजमा की 2 अक़साम हैं। बोलिए। सिफात लाजमा मुतज़ादा, सिफात लाजमा गैर मुतज़ादा। सिफात लाजमा मुतज़ादा वो हैं कि जो हर हालत में होती हैं, जो हर हालत में होती है, और उसकी जिद, मसलन 29 हरूफ हैं, 29 हरूफ हैं,
उनमें से आधे हरूफ जो हैं यानी 10 हरूफ ले लें, उनमें सांस जारी रहेगा और आवाज हल्की रहेगी। सांस जारी रहेगा और आवाज उन 10 में ये हर वक्त जरूरी है। और बाकी जो 19 हैं उनमें आवाज बुलंद होगी, पस्त हल्की, पस्त इसकी जिद क्या हुई बुलंद, और सांस जारी होना इसकी जिद क्या हुई सांस बंद होना। ये आपस में जिद हो गई ना। तो बस 29 हरूफां चो हरफां चो कुछ हरफां च एक सिफत होएगी तो जो बाकी दे ओदी जिद होएगी। बस कुछ हरूफ हैं वो पुर हैं, 29 हरूफ में से 7 हरूफ हैं वो पुर ना हो तो गुजारा नहीं होता, और बाकी 22 हरूफ जो हैं वो बारीक हैं। अब उनका बारीक होना जरूरी है और जो पुर है उनका पुर होना जरूरी है। अब आपस में ये क्या हो गया जिद है, ठीक है ना। तो इन्हें कहते हैं मुतजादा, समझा गई क्या। और गैर मुतजादा ये हैं कि मसलन 29 हरूफ में से 5 में कलकला है, बाकी हैं 24 उनमें कलकला नहीं। तो वहां पर जिद तो है लेकिन वहां जिद का नाम नहीं है। उनका नाम ना होने की वजह से उनको कहते हैं गैर मुतजादा। अब आइए आपके सामने टेबल बना हुआ है ये, इसमें देखें कि वो 10 सिफतें हैं लाजमा। लाजमा की कितनी किस्में हैं 10। एक दूसरे की जिद है जी। सिफत का नाम, पहली सिफत का नाम क्या है हमस। क्या नाम है हमस। उसकी जिद का क्या नाम है जहर। दूसरी जिद है शिद्दत, उसकी जिद का नाम क्या है रिखवत, रिखावत भी कह सकते हैं। तवस्सुत को नहीं गिनना भी। तीसरी सिफत है इस्तिअला, बोलिए उसकी जिद का नाम क्या है इस्तिफाल। चौथी सिफत है इतबाक, उसकी जिद का नाम क्या है चौथी। 5वीं सिफत है इज़लाक, उसकी जिद का नाम क्या है। अब अगले पेज पे आए, अब देखें इसके ऊपर सिफत के नाम भी हैं, उसका लफ्जी माना भी है और अमल किस तरह होगा वो भी लिखा हुआ है, और किन हर सिफतों में किन हरूफ में वो सिफत पाई जाती है उनके हरूफ भी लिखे हुए हैं। ये देखिए ये टेबल आपके सामने आ गया, पूरा पेज दिखाएंगे। ये देखिए सबसे पहले हमस है, उसके नीचे उसका माना लिखा हुआ है। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, और हमस के आगे उसकी जिद जहर है। समझा रहे हैं, ये पूरा टेबल बना हुआ है। अच्छा अब देखिए ऊपर देखें सिफत का नाम, ऊपर से नीचे देखें तवस्सुत को छोड़कर बाकी कितने नाम लिखे हुए हैं 10। गिने जरा, नाम बोले इनके हमस और इस्मात। आखिरी नाम जो है ये किताबत की गलती है, ये अलिफ साद मीम अलिफ ता है, इस्मात। अब आइए ऊपर हमस का लफ्जी माना क्या है। देखिए मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। ये हम फाद आ करते हैं ना, इफ तफ ते की आवाज को छोड़ दें, ये है तफ, आवाज आई है तफ। अब बोले तफ, पहले तो ते है ना, ता को निकाल, बाकी क्या रहता है ये। अच्छा ये इस तरह है जिस तरह ऊंट जब रेत के ऊपर चलता है तो उसके पांव चौड़े होते हैं, तो उसके पांव के नीचे से रेत जो है वो सिरकती है। तो वो जो सिरकती है ना, जब कोई चीज सिरके, कोई चीज किसी जगह से भी जब वो बारीक सिरके ना, तो उसकी जो आवाज होती है वो बड़ी पस्त होती है। और घोड़ा जब सड़क के ऊपर चलता है तो उसके पांव के नीचे वो लोहे की बनी होती हैं, खुरियां कहते हैं पंजाबी में उसको, ठीक है ना। तो उसकी आवाज मीलों दूर से आती है, टापों की आवाज, क्या कहते हैं घोड़े के टापों की आवाज। और ऊंट के कदमों की आवाज नहीं आती, फिर क्या करते हैं कि उसके गले में घंटियां डाल देते हैं, ठीक है ना। दूर से आवाजें आती हैं ऊंटों की। समझ आ गई ये पस्ती और ज़ौक़ की। अब आपको अदा करके दिखाते हैं, देखिए
यस्तही मैं जब बंदे ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ये वही बात कई दफा होता है ना ऐसा सारे ही करते हैं सर ये है हमस और जहर क्या है ये बुलंद है आवाज ये है जहर और हमस क्या है हमस का माना क्या है पस्ती या ज़ोफ अदायगी के वक्त आवाज में ज़ोफ और पत्नी इतना ज़ोफ और पस्ती इतनी के सांस जारी रहे सांस जारी रहे और कितने हरफों में सिफ्त पाई जाती है फहस्सहु शख्सुन सकत बोलिए जरा आप पढ़िए जरा इसको अदायगी के वक्त आवाज में ज़ोफ और पस्ती इतनी के सांस जारी रहे आप बारी बारी पढ़ते जाएं अदायगी के वक्त आवाजें और आवाज में ज़ोफ और पस्ती ज़ोफ और पस्ती इतनी के सांस जारी रहे कौन से हरूफ हैं फहस्सहु शख्सुन सकत आगे जहर पढ़िए अदायगी के वक्त आवाजें बुलंदी और कुव्वत इतनी जिसकी वजह से सांस बंद हो जाए शिद्दत सख्ती और कुव्वत लफ्ज़ी माना सख्ती और कुव्वत अब देख समझा गई है जी हमस का माना क्या था जहर पस्ती और हमस का माना जहर पस्ती और ये आपने याद करनी है जुबानी अदायगी के वक्त आवाज में ज़ोफ और पस्ती इतनी कि सांस अगर सांस जारी ना हो तो हा आप जितना चाहे लंबा कर सकते हैं ना ये सांस जारी है अब जहर बुलंदी और कुव्वत अदायगी के वक्त आवाज और कुव्वत इतनी कि जिसकी वजह से सांस बंद हो जाए देखिए सांस टूट गया ना जी आवाज सांस टूट जाता है आप चाहें भी ना तो इसमें आप सांस जारी नहीं रख सकते जी नहीं ना होगा नहीं ये जहर है समझा गई सबको कितने हरूफ हैं जिनमें शिफ्ते हमस पाई जाती है 10 बोलिए ये फहस्सहु शख्सुन सकत बस पाया माने उस शख्स को कि वो खामोश था ये चलो इसको आपके तो जहर कौन से हो गए इन 10 हरफों को आप जब ये मजमुआ याद कर लेंगे ना ये मजमुआ याद कर लेंगे ना तो फिर आप वैसे आप याद करें ना फा हा सा हा मुश्किल हो जाते हैं तो ये लफ्ज याद कर लें बोलिए कि क्या लफ्ज है अब अलिफ से या तक जो हैं उनमें से ये 10 हरूफ निकाल दें देखें इसमें हमजा है नहीं है तो वो किधर गया जहर में इसमें बा है वो किधर गया ता यहाँ है सा भी है इसमें जीम है वो किधर गया हा यहाँ है खा भी है इसमें दाल है वो किधर गया जहर में जाल भी किधर गया जहर में रा भी जहर में जा भी सीन शीन यहाँ है साद भी है वाद भी जहर में फा भी गा भी आइन भी गैन भी फा यहाँ है काफ भी काफ यहाँ है लाम भी मीम भी नून भी वाव भी हा यहाँ है या भी समझा गई ना जब ये याद कर लोगे ना तो बाकी सारे हरूफ आपके लिए आसान हो जाएंगे बोलिए मजमुआ क्या है आज के सबक में आपके लिए ये है ये कम लोगों को आती हैं अगर आप ये याद कर लेंगे तो आप मजबूत कारी बनेंगे मखारज आपने माशाल्लाह याद कर लिए हैं याद है ना आपको मखारज अगर मैं पूछूं तो आप बयान करेंगे आप बयान करेंगे फा का मखरज आप बने सनाया उलिया नीचे होने के शिकम के साथ लगे फाद आता समझा गई ना आप बयान करें मीम का मखरज दोनों होंठों का तरी वाला हिस्सा हाँ बिल्कुल वहाँ से मीम दोनों होठों का
خشکی والا حصہ، ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ کو مخارج، یہ صفات بھی ہے، کیونکہ تجوید اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، یا مخارج اور یا صفات. یا مخارج اور یا صفات. جس بندے کو مخارج یاد ہو جائیں اور صفات یاد ہو جائیں، اور صفات میں کیا کیا ہیں؟ صفات لازمہ اور صفات عارضہ. تجوید اسی کا نام ہے. اور اس کے بعد جو ہیں وقف کا طریقہ، وہ تجوید سے باہر ہے. لیکن قاری بننے کے لیے 4 علموں کا جاننا ضروری ہے. قاری بننے کے لیے کتنے علموں کا؟ تجوید، بولیے، وقف کا علم، وقوف کا علم. وقف کی جمع ہے. قرآن پاک میں کون سا لفظ علیحدہ لکھا ہے کاٹ کر، کون سا؟ اسے کہتے ہیں علم رسم الخط. خط قرآن میں کیسے لکھا ہو. اور چوتھا، اگر یہ اوپر کا حصہ آ جاتا ہے کہ 7 عشرہ کے جو روایات ہیں، قراءات ہیں، بندہ اس سے بھی ماہر ہو، پھر آدمی قاری کہلوانے کا مستحق ہے. تو ماشاءاللہ آئیے اب ہم تلاوت کی طرف چلتے ہیں. یہ کدھر سے پڑھنا ہے؟ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں کدھر سے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا. عِبَادِي. اچھا آگے ہے، 6 آیت نمبر بتائیں. بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإذا سألك عبادي عني فإني